Hello, guys. Namaste, Privyat, and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो गाइज़ ये हमारा मॉस्को में लास्ट डे था और इसीलिए ये थोड़ा और स्पेशल था। और इस दिन हमें मॉर्निंग में कार पिक करने आई थी और वो हमें हमारी टूर गाइड के पास ले गई थी। और हमारी टूर गाइड जो है वो हमें उस दिन सिटी के बारे में और भी चीज़ें बताने वाली थी। Kreml is not Russian. It came either from nomads or from Tatars. And so we call Kremlins in Suzdal, in Kostroma, in other Russian towns, not only here in Moscow. But Moscow Kremlin is famous. So everybody knows it like in the past. Actually, it was residence of Russian Tsars, and then it was a residence of Russian government, Soviet government, and now it's only office. Since Khrushchev, it's only office of Putin, of president and administration, and Putin's office is over there, behind the trees. It's a palace from the 18th century that is very beautiful, from classical time, one of the rare buildings that haven't survived after the Napoleon War. Napoleon War was in 1812, and so 3/4 of all buildings were burned down. So that's why classic buildings that we have, for example, in St. Petersburg, we don't have so many here. And so this is Arsenal building. Here is Arsenal building, and this building was erected after Napoleon. On the side of the building that was destroyed in Arsenal. So Kremlin was also damaged during Second World War, but not so much because fascists Asian church from the 15th century. This one, Saint Archangel Michael Church, from the beginning of the 16th century, burial place of Russian Tsars. So then you see here one of our highest, tallest edifices. This one. This is belfry erected in the 19th century. Ivan the Great built, but not after the name of the Tsar. But this is actually compared with a small church that used to be here on this side. So 16th century, under Ivan III and Boris Godunov, this building was there. And it was also watching tower. So 17th century is represented by this Patriarch Palace and the church to 12 apostles, this one. In the 17th century, Alexei Romanov, the Tsar, who was father of Peter the Great, whose name you know. 15th century civic building, this one. This is facet palace because the stones are faceted on the facade, and so it was built by Italian architects in the 15th century, and it used to be a reception hall of Russian Tsars, this one. And now when, for example, our patriarch has services here, guests are invited to this facet palace. So this is the oldest building on the territory of Moscow, 15th century. So this square was always famous, and it's one of the most beautiful squares in Russia. So then you see. सो गाइज़ हम यहाँ पे कैथेड्रल ऑफ आर्केंजल में आए हुए थे। ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो डेडिकेट करा गया था आर्केंजल माइकल के लिए, और ये जो है ये लोकेटेड है ग्रेट क्रेमलिन पैलेस और इवान द ग्रेट बेल टावर के बीच में। और ये जो बनवाया गया था ये ईयर 1505 और 1508 के बीच में बनवाया गया था। इसको बनाने वाले इटालियन आर्किटेक्ट थे जिनके अंडर ये बना था। पहले यहाँ पे एक ओल्ड कैथेड्रल था जो कि बनवाया गया था ईयर 1333 में, एंड नाउ इट ऑल्सो सर्व्स एज अ पार्ट ऑफ मॉस्को क्रेमलिन म्यूजियम्स। तो हमारी टूर गाइड ने हमें एक एक कैथेड्रल के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था, और हम यहाँ पे क्रेमलिन में उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे। वो हमें साथ ही साथ उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, और प्रेजेंट में वो जगह क्या पर्पस सर्व करती है, किस लिए है, वो म्यूज़ियम है या सिर्फ एक विजिटर्स प्लेस है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। तो ऑल इन ऑल ये हमारे लिए बहुत ही नॉलेज वाला टूर हो गया था, और ये डे जो था ये मैं कभी नहीं भूलूँगी।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं और हम अपनी मेमोरीज़ को सेव करना चाहते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ताकि जब भी हमारा मन करे लाइफ में हम ये मोमेंट्स वापस से रिलीव कर सकें। तो या हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जो चर्चेज़ हैं उनके अंदर ना फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप फ़ोटोज़ लो। हमें उनके भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक दो चर्चेज़ मुझे फ्यूचर में ऐसी मिली थी जहाँ पे अलाउड था, तो मैंने वहाँ पे वीडियोग्राफी करी है। Yeah, this is Kremlin Fort, and behind this is Moskva River, and this is the state guest house for all the visiting dignitaries, and Putin's car, president's car basically comes here, and this is all you can see. This is the fortress wall. Behind it is beautiful Moskva River. And here we are in Moscow, enjoying our guided tour. You can see there the traffic. This is a guest house building. This is basically gold plating, and inside this building is also a lot of. There are 9 cathedrals basically in this square. Yeah, that's it. तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे एक और लगी कि बहुत ही ग्रीनरी थी और ये जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आप देखोगे हर चीज़ बड़े ही सिस्टम से है, मतलब जहाँ पे आपके कैथेड्रल हैं, रोड्स बहुत क्लीन हैं और यहाँ पे पूरे पार्क्स डेवलप्ड हैं और पार्क्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन करे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे उसके पार्क्स में भी कुछ हिस्ट्री थी, कुछ डिटेल्स थी कि कोई ट्री है जो बहुत ही पुराना है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। यूरी गैगरिन पहले रशियन कॉस्मोनॉट थे और वो आउटर स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन थे। It's the biggest bell in the world. That's why it's called Tsar bell. And so it was made in the 5th round. And when the bell was ready, then it was a fire. And the people tried to save the bell. And they put cold water. And it cracked. So one piece of the bell is off. And it's over there, near the bell. This bell on that postament. And since the 19th century, it's here, on this postament. So the bell from Everine. Yeah? And so to the right-hand side, you see the Tsar cannon. And this Tsar cannon was made 2 centuries earlier, in the 16th century, by Anton Russian master. And it's called also Tsar cannon because it's the biggest in the world. So, and it's 40 tons. It weighs 40 tons. We call also this cannon the best in the world because it never fired. Yeah. So, but walls that are purely decorative. Yeah. So we go now to see the bell, and there you can take pictures, and then.
तो यहाँ पे हमारी टूर गाइड ने हमें ज़ार बेल के बारे में बताया। ज़ार बेल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेल, और यहाँ पे हमें वो एक्सप्लेन कर रही हैं ज़ार बेल की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली ये जो ज़ार बेल अब प्रेजेंट में रशिया में मॉस्को में है लोकेटेड, ये बेसिकली थर्ड बेल है। इससे पहले हिस्ट्री में 2 बेल और रह चुकी हैं, जिसके बाद ये थर्ड बनी है। तो चलो इसी के साथ मैं आप लोगों से ज़ार बेल की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेती हूँ। तो जो फर्स्ट ज़ार बेल थी वो 16th सेंचुरी में बनी थी, एंड इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ द अर्ली बेल्स, एंड इट वाज द ओरिजिनल ज़ार बेल, और वो कंप्लीट हुई थी 1600 तक, और उसका वेट 18,000 kgs था, और उसके क्लैपर को बजाने के लिए 24 लोगों की ज़रूरत होती थी। And it was housed in the original wooden Ivan the Great bell tower in Moscow Kremlin, and it crashed to the ground in a fire in mid 17th century and was broken to pieces. तो जो सेकेंड ज़ार बेल कास्ट हुई थी वो ईयर 1655 में हुई थी। उसको बेसिकली जो बनाया गया था वो फर्स्ट बेल के ही पीसेस जो थे उन्हीं से बनाया गया था, बट ऑन अ मच लार्जर स्केल। तो जो वेट था सेकेंड बेल का वो 1 लाख kg था, बट अगेन डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन 1701। सो बेसिकली जो प्रेजेंट में ज़ार बेल है, इट इज़ ज़ार बेल 3, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द इवान द ग्रेट बेल टावर एंड द क्रेमलिन वॉल, और ये बनाया गया है ब्रॉन्ज मेटल से। और जब ये बेल कंप्लीट हो गई थी तो इसमें भी क्रैक आ गया था एक बार फायर लगने की वजह से। तो ये बेल जो है ये कभी भी नहीं बजाई गई है, और ये आज के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट बेल है वर्ल्ड में, जिसका वेट 2,01,924 kgs है, और इसकी हाइट 6.14 मीटर्स है, यानी कि 20.1 फीट, और इसका डायमीटर जो है वो 6.6 मीटर्स है, यानी कि 22 फीट, और जो थिकनेस है वो 61 सेंटीमीटर्स है, विच मीन्स 24 इंचेस, और जो इसका पीस है वो अकेला ही 11,500 kgs का है। के ऊपर रिलीफ इमेजेस हैं एंजल्स के, प्लांट्स के और एम्प्रेस के। बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। जो हिस्ट्री है रशियन बेल की वो 10th सेंचुरी से है, और उस टाइम पे भी ये जो रशियन बेल थी ये टिपिकली सिर्फ चर्च सर्विसेज के लिए नहीं बजाई जाती थी, पर ये इसलिए भी बजाई जाती थी कि आपको इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज़ की अनाउंसमेंट करनी है, या कोई सेलिब्रेशन है उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करनी है, इवन एज एन अलार्म इन केस ऑफ फायर और एनिमी अटैक। ज़ार बेल के साइड में ही ज़ार कैनन है, और इसको लेकर रिसर्चर्स की 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये कभी भी किसी वार में यूज़ नहीं हुई है, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं वो ब्रॉन्ज मेटल के बने हुए हैं, और अगर ये शॉट करने के लिए यूज़ करी जाती तो वो ब्रॉन्ज मेटल से बने हुए पार्ट्स डैमेज हो जाते। और इसमें एक और चीज़ है जो मिसिंग है, वो है पायलट होल, जो कि फायरिंग जो है वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल बना देती है। तो एक थ्योरी तो ये कहती है, और इसकी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये एक बार यूज़ करी गई है, इससे एक बार शॉट करा गया है, क्योंकि इसमें गन पाउडर के रेसिड्यूज़ मिले हैं जो इंडिकेट करता है कि ये एक बार तो चलाई गई है। तो ये 2 थ्योरीज़ हैं, और इसमें से कौन सी थ्योरी सही है ये किसी को नहीं पता। So it is a monument of Russia artillery casting art, cast in bronze in 1586 in Moscow by the Russian master bronze caster Andrei, and mostly of symbolic impact. It was never used in a war. And as per the Guinness Book of Records, it is the largest bombard by caliber in the world, and it is a major tourist attraction in the ensemble of the Moscow Kremlin. सो यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोगों को वापस जाना था, और वापस जाने के लिए हमें मेट्रो स्टेशन पे जाना था, क्योंकि हमें मेट्रो से जाना था।
तो गाइज़ अब बारी आती है मॉस्को के मेट्रो स्टेशंस के बारे में। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सुंदर मेट्रो स्टेशंस आपने लाइफ में कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ जो हम दिल्ली में देखते हैं वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये मेट्रो स्टेशंस इतने ब्यूटीफुली बने हुए हैं, ऐसा लगता है कोई म्यूज़ियम है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ फेमस फॉर इट्स एक्स्ट्रावेगेंट एंड यूनिक इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सिलेटेड एज द पैलेस ऑफ द पीपल। और मॉस्को के मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो बहुत ही एफिशिएंट हैं और ब्यूटीफुली ऑर्नेट स्टेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो इन मेट्रो स्टेशंस को यूज़ करते हैं, और फिर भी ना इतनी क्लीनलीनेस है इन मेट्रो स्टेशंस पे। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम्स इन द वर्ल्ड विद मोर देन 9 मिलियन राइडर्स एवरी डे। तो इतना यूनिक डिज़ाइन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर मेट्रो स्टेशन का डिज़ाइन ही अलग है और यूनिक है। किसी किसी में ऐसा इफ़ेक्ट लगेगा कि आप कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हो, और इतने सुंदर स्कल्पचर्स हैं, आप इस पिक्चर में ही देख सकते हो। इतने सुंदर स्टेशन पे लगे हुए स्कल्पचर्स हैं कि देख के एकदम मज़ा ही आ जाता है। और इसकी जो ब्यूटी है ना, हिस्ट्री, वो हर एक मेट्रो स्टेशन पे रिफ्लेक्ट होती है। और यूनिक आइडिया यूज़ करा गया है थ्रू आउट मेट्रो स्टेशंस पे। बस मुझे टूरिस्ट के पार्ट पे एक चीज़ का ड्रॉबैक लगा इन मेट्रो स्टेशंस पे, और ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी है कि हम किसी सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ फील करी कि यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हर स्टेशन पे रशियन लैंग्वेज में ही लिखा गया है कि कौन सा स्टेशन है। इवन जो मैप्स हैं उनमें भी जो डिटेल्स लिखी गई हैं वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिनकी वजह से किसी टूरिस्ट को जिनको रशियन लैंग्वेज नहीं आती होगी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आप हमें कहो कि हम ही अकेले यहाँ पे ट्रैवल करें तो मुझे काफ़ी रिस्की लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं खो जाऊँगी यहाँ पे कहीं। लेकिन हमारे साथ टूर गाइड थी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो एज़ अ टूरिस्ट मुझे सिर्फ एक यही ड्रॉबैक लगा कि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू काफ़ी है, और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है या फिर आपके साथ कोई टूर गाइड नहीं है, तो आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर सकते हो। बाकी आप नहीं तो आज के टाइम पे तो गूगल ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हो, आप इजीली उससे कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से। बाकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। और मेट्रो स्टेशंस तो बहुत ही सुंदर थे, हर एक डिटेल पे, हर एक माइन्यूट डिटेल पे इतने प्रिसाइजली वर्क करा गया था। और मेरा पर्सनली मन था मैं हर एक स्टेशन पे उतर के और हर एक स्टेशन को बहुत अच्छे से देखूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग जब मेट्रो से वापस जा रहे थे तो हमारे टूर गाइड हमें मेट्रो स्टेशंस के बारे में भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। तो फाइनली हम लोग अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो था हमारे होटल के पास, वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमने वहाँ से डिसाइड करा कि हम पैदल ही चले जाएंगे, और हमने अपने टूर गाइड को वहीं से सी ऑफ कर दिया था। मैंने मॉस्को में एक चीज़ और नोटिस करी थी कि वहाँ पे जो भी पिजन्स होते थे वो पता नहीं पैदल ही क्यों चलना प्रेफर करते थे जबकि वो उड़ सकते हैं, आई डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पे फिर आ गए अपने होटल में, और यहाँ का जो गार्डन एरिया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि ये टाइम है जब सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हम टाइम से आ ही गए हैं और अब हमें रात का कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का एज सच, तो हम थोड़े टाइम यहाँ पे बैठते हैं एंड वी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम हियर। और इसी टाइम मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था सामने से। और उसके बाद हमने सोचा चलो फिर उसके बाद रूम में जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, और फिर रात में देखते हैं। फिर हम लोग रूम में गए, रूम में हमने अपने रेडी टू ईट नूडल्स बनाए जल्दी से, फिर हमने वो खाए। और वहाँ से मैंने कुछ वहाँ की लोकल चीज़ें भी ले रखी थी, तो वो पेस्ट्रीज़ कहते हैं उसको, तो वो भी मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ट्राई करी। और ये ग्रेप्स थे, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ चॉकलेट्स थी, और ऐसे ही हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट करा।
अभी यहाँ रात के 9 बजे हैं। It's a view from my hotel room, and it's already 9 o'clock and still sky is not completely dark. तो रात हो गई थी और आप देखोगे वहाँ पे कम्प्लीटली अंधेरा नहीं होता है, तो वहाँ पे कितनी भी देर हो जाए ना आपको लगेगा कि शाम है। और फिर हमने डिसाइड करा कि चलो थोड़ा सा आसपास के किसी स्टोर में चलते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा डिनर करने का मन नहीं था। तो हमने वहीं से कुछ सामान ग्रैब कर लिया एंड वी केम टू आवर रूम एंड वी हैड इट लेट नाइट और हमने बस इंजॉय करा। सो गाइज़, इसी के साथ मॉस्को का ट्रिप होता है मेरा ख़त्म। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था सेंट पीटर्सबर्ग बाय सैप्सन ट्रेन, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूँगी। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि दिस सिटी हैज़ न्यूमरस हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, सो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर दोज हु लव हिस्ट्री और जिनको आर्ट्स का शौक़ है और जो थोड़े आर्टिस्टिक हैं बेसिकली, और उनको यहाँ पे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और वास्ट नेचुरल ब्यूटी दिखेगी अनलाइक एनीवेयर एल्स। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, यू मस्ट मेक श्योर टू विजिट मॉस्को। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। So guys, if you like this video, make sure to like this video and also make sure to subscribe to my channel and also hit that bell button। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट डे सैप्सन ट्रेन में। So till then, take good care of yourself. Bye।